નમસ્કાર નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત આઈપીએલ 2024 કાર્યક્રમ સાથે હું છું યજ્ઞ ત્રિવેદી। દર્શક મિત્રો, આઈપીએલ 2024 કાર્યક્રમમાં આજે આપણે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ ગઈકાલની એક મહત્વપૂર્ણ મેચની। ગઈકાલની વાત કરવામાં આવે તો મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ વર્સિસ રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચે જે મેચ હતી, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે ક્યાંક પ્રથમ બેટિંગ લીધી। આમ એમ કહેવાય છે કે જ્યારે ટોસ કોઈ પણ ટીમ જીતતી હોય છે તો ત્યારે તેઓ સૌથી પહેલા રન ચેસ કરવાનો એક પ્રયત્ન કરતા હોય છે, પણ ગઈકાલે ક્યાંક ઊંધું જોવા મળ્યું। જ્યારે હાર્દિક પંડ્યા ટોસ જીત્યા અને ટોસ જીતીને પહેલા તેમણે બેટિંગ લીધી। એમણે ક્યાંક એમ હતું કે ના સારો એવો સ્કોર અત્યારે તો બનાવીશું, ક્યાંક સારું એવું ટોટલ મૂકીશું તો રાજસ્થાન રોયલ્સને ક્યાંક હરાવી દઈશું, પરંતુ એ ગઈકાલે જોવા ન મળ્યું। ગઈકાલે વધુ એક પ્લેયર રાજસ્થાનના એ ફોર્મમાં આવ્યા હોય તે પરિસ્થિતિ જોવા મળી। અત્યાર સુધી આપણે જોયું છે સંજુ સેમસન, સિમરન હેટમાયર અને સાથે અન્ય એવા ખેલાડીઓ જે ફોર્મમાં હતા। જોસ બટલરને લઈને ચિંતા હતી, પરંતુ તેમણે પણ છેલ્લી 2 મેચમાં 2 સેન્ચુરી મારી લીધી। યશસ્વી જયસ્વાલને લઈને ક્યાંક ચિંતા હતી ને યશસ્વી જયસ્વાલની ચિંતા પણ આ વખતે પૂર્ણ થઈ ગઈ, કારણ કે તેમણે આ સિઝનની પહેલી સેન્ચુરી પણ તેમણે મારી। બીજી બાજુ જોવા જઈએ તો મુંબઈ ઇન્ડિયન્સની વાત કરીએ તો મુંબઈ ઇન્ડિયન્સનું ક્યાંક સારું પરફોર્મન્સ ન જોવા મળ્યું। એક બાજુ રોહિત શર્માની વાત કરીએ તો રોહિત શર્માનું ક્યાંક સારા એવા પરફોર્મન્સની આશા હતી, ઈશાન કિશનના આશા હતી, સૂર્યકુમાર યાદવ કે જે ઇમ્પેક્ટ પ્લેયર તરીકે આવ્યા હતા, પરંતુ તે પણ ક્યાંક કાલે આશા પુરવાર ન થઈ। બીજી બાજુ જોવા જઈએ તો તિલક વર્મા અને નેહલ વાઢેરા બંને આવ્યા અને ક્યાંક 179 સુધી પણ પહોંચાડ્યા। જ્યારે આજની વાત કરીએ તો આજે પણ એક બહુ જ મહત્વપૂર્ણ મેચ છે અને તેમાં પણ જ્યારે ચેન્નઈ સુપર કિંગ અને લખનઉ સુપર જાયન્ટ્સની વાત કરીએ તો આજે બંને ટીમ ટોપ 4નું સ્થાન અત્યારે તો સાચવવા માટેનો એક પ્રયત્ન કરશે। આ વખતે ટોપ 4માં કોણ રહેશે તે પણ એક સવાલ તો યથાવત હોય છે, પણ ચેન્નઈ સુપર કિંગના હોમ ટાઉનમાં મેચ થવા જઈ રહી છે, ચેન્નઈના સ્ટેડિયમમાં છે, તો આજે જોવાનું એ છે કે આજે કોણ જીતશે અને કોણ હારશે। તમામ મેચને લઈને ચર્ચા વિચારણા કરીશું। આ તમામ મેચને લઈને ચર્ચા વિચારણા કરવા માટે અમારી સાથે પૂર્વ રણજી खिलाड़ी અને पूर्व आईपीएल खिलाड़ी अमित सिंह हमारी साथ स्टूडियो में उपस्थित है। जी अमित जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू अमित जी, जिस तरीके से अगर हम सबसे पहले कल की मैच की बात करते हैं, मुंबई इंडियंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, आप भी एक आईपीएल खिलाड़ी हो। अमित जी, अब तक हमने देखा है कि जब भी कोई कैप्टन टॉस जीतता है तो सबसे पहले चेस करने का सोचता है, मगर कल चेस की बात ही नहीं हुई। कल यही बात हुई कि नहीं, हम पहले बैटिंग करते हैं, अच्छा स्कोर खड़ा करते हैं और बाद में विकेट ले लेंगे। मगर हम सब जानते हैं कि मुंबई इंडियंस की बॉलिंग अभी उतनी अच्छी नहीं है जो हम पहले एक्सपेक्ट करते थे कि नहीं अच्छी है, मगर अभी नहीं है। क्या कहोगे कल के मैच के बारे में और मुंबई इंडियंस के परफॉर्मेंस के बारे में? विघ्नेश, पहले अगर बात करें कि टॉस जीत के बल्लेबाजी क्यों ली गई, और उसके बाद आपने जैसे सही बोला है कि सारी की सारी टीम प्रेफर करती है कि टॉस जीते और वो चेज़ करें, क्योंकि जिस तरीके का अभी आज की तारीख में चल रहा है, विकेट्स हम शाम की मैच होती है और उसके बाद विकेट्स के साथ साथ आउटफील्ड भी थोड़ा सा ड्यू फैक्टर आता है, तो स्पिनर्स को मदद कम मिलती है, बैट पे बॉल बहुत अच्छे से आता है। ये सारे फैक्टर्स को देख के तो ऐसा लगता है कि डेफिनेटली कोई भी बैट्समैन जो है या कोई भी कप्तान अगर टॉस जीतता है तो बैट्समैन भी यही चाहेगा कि भाई हमारे पहले बैटिंग ना आए, बाद में आराम से बैटिंग करेंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस के थिंक टैंक ने सोचा कि भाई एक अच्छा बड़ा स्कोर बनाते हैं और उसके बाद एक अंडर प्रेशर ला सकते हैं वो टीम को, ऐसा सोचा था उन्होंने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और साथ में एक मैं बोलूँगा कि ख़राब स्कोर नहीं था, एक डिसेंट स्कोर था, क्योंकि राजस्थान की विकेट, जयपुर की अगर आप विकेट देखेंगे तो बैटिंग पिच है, अच्छा बॉल आता है, तो 190 पार स्कोर बोलूँगा मैं, ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा बन गए थे या बहुत कम बन गए थे। अगर अच्छी बॉलिंग की होती मुंबई इंडियंस ने, डेफिनेटली एक तकलीफ होती राजस्थान को, लेकिन जिस तरीके से यशस्वी ने बैटिंग की है, मतलब 60 बॉलों पे 100 रन बनाना, और जो कि आउट ऑफ फॉर्म थे अगर हम बोला जाए तो बहुत ही क्वाइट इस बार का उनका अभी तक का आईपीएल सीजन गया था, और कल उन्होंने ये एक 100 से दिखाया कि वो क्या कैपेबिलिटीज़ है उनमें और किस तरीके का लोहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर वहीं देखा जाए तो मुंबई इंडियंस ने काफ़ी कुछ अभी टफ रोड्स आने लगे हैं, क्योंकि अब जो बातें हैं कि अब मैचेस कम होते जा रहे हैं और टेबल पे हमको ऊपर भी रहना है। तो हार्दिक के मैं सिर्फ ये नहीं बोलूँगा कि कैप्टन का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो एक इतना बड़ा स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ है उनका, थिंक टैंक है, उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आएगा कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से आगे की स्ट्रेटजीज बनाएंगे। जी बिल्कुल। और जैसे ये अगर हम बैटिंग की बात करें तो कल कोई फॉर्म में नहीं था अमित जी। जो रोहित शर्मा की बात करें या सूर्यकुमार यादव को हर मैच में इम्पैक्ट प्लेयर की तरह लाते हैं, मगर 1-2 मैच चली अच्छी थी, हम ऐसे भी नहीं बोलेंगे कि नहीं मुंबई इंडियंस की बैटिंग अभी भी बहुत अच्छी नहीं है।
मगर इम्पैक्ट प्लेयर जब भी आते हैं तब सब लोग यही सोचते हैं कि नहीं ये आएंगे 50-100 रन लगाएंगे, कहीं पे अच्छा टारगेट क्रिएट करेंगे, मगर कल वो नहीं दिखा। जो टॉप ऑर्डर के जो भी बल्लेबाज थे, या रोहित शर्मा कहो, ईशान किशन कहो कि या फिर हम सूर्य कुमार यादव की बात करें, वो अभी कोई फॉर्म में नहीं दिखे, क्यों ऐसा? देखिए, पहला जो सवाल है आपका इम्पैक्ट प्लेयर को लेके, ये ऑप्शन ही मैं बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन नहीं हूँ इस पार्ट का, क्योंकि आप जस्ट डगआउट पे बैठे हुए हैं और सीधा आ रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं और फिर 20 ओवर कुछ नहीं कर रहे हैं, या फिर जब आपकी टीम फील्डिंग कर रही है तो आप बाहर बैठे हुए हैं। तो एक जो कनेक्ट मेरे को लगता नहीं कि किस तरीके से एक साइकोलॉजिकली आप कनेक्ट कर पाते हैं मैच के साथ, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जो आप अगर आप देखेंगे तो पहले ये बोला जाता है कि भाई फील्ड पे रहोगे तो फील होगा, एटमॉस्फेयर के साथ जेलवेल होंगे और आप आएगा। आज आप इम्पैक्ट प्लेयर को सीधा ये बोलते हैं कि भैया चलिए आपकी बैटिंग आई है, अब आप जाके रन करिए। या आप इम्पैक्ट प्लेयर बॉलर आ गए हैं, बॉलर का मैं तब भी बोलूँगा कि उनके थोड़ा कम चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि वैसे भी बैटिंग उनकी इतनी आती नहीं, तो वो डगआउट में बैठे रहते हैं। लेकिन जहाँ बैट्समैन की बात आती है तो एक बहुत टफ चीज़ हो जाता है। और सूर्य की बात की जाए कैटेगरी की, एक तो पहले इंजरी से वो वापस आ रहे हैं, और उसके बाद भी अगर टीम वो बोल रही है कि आप भाई ठीक है उनको प्रिजर्व करना चाहते हैं और ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर रखना चाहते हैं कि उनको फील्ड पे ज़्यादा लोड ना है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपको दिख जाएगा कि वो बैटिंग में नहीं आ रहा है। क्योंकि जब आप एक 20 ओवर फील्डिंग करेंगे तो आपको मालूम है कि क्या हो रहा है, ग्राउंड के अंदर क्या हो रहा है, और उसके बाद बैटिंग उस तरीके से कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि सूर्य कुमार यादव का एक वीक पॉइंट है। उसके बाद अगर हम ओवरऑल बात करें मुंबई इंडियंस के, तो आप देखेंगे तो मुंबई इंडियंस की बैटिंग लाइनअप तो 8 नंबर 9 नंबर तक है। टिम डेविड आपके 8वें नंबर पे बैटिंग करने आए हैं। तो बैटिंग और बल्लेबाजों की कमी नहीं है, लेकिन जो एप्लीकेशन ऑफ बैटिंग है, जिस तरीके से बैटिंग करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आपके 4 बैट्समैन आउट हो जा रहे हैं, एक ही बॉलर पे आप आउट हो रहे हैं। संदीप शर्मा जो खुद राजस्थान के बॉलर जो इंजरी से वापस आए हैं, आप इतना ज़्यादा मतलब कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, मैं उनका क्रेडिट नहीं निकालना चाहता हूँ कि 5 विकेट लेना T20 में एक अच्छी बात है, लेकिन आपके शॉट सिलेक्शंस भी देखने बहुत ज़रूरी है कि क्या किस तरीके से किया जा रहा है। आप जान रहे हैं कि आपकी जो टीम है वो टेबल के सेकेंड हाफ में है, नीचे के साइड से है, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से बैटिंग करनी है। आप देख रहे हैं कि सामने जो टीम है वो 200 रन चेस करके आई हुई है। अगर आप देखेंगे तो कलकत्ता में उन लोगों ने चेस किया है। तो कहीं ना कहीं आपके बल्लेबाजों को भी उस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए कि जो आपके पास पावर है, पूरा टिम डेविड है, हार्दिक पांड्या है, इतने स्ट्रॉन्ग हिटर्स हैं आपके पास, तो वो आपको बाद में भी आप कर सकते हैं। तो क्या हम सही तरीके से जा रहे हैं? बल्लेबाजी सिर्फ फॉर्म की बात नहीं है। आपके थिंक टैंक का मैं यही बहुत प्रेस कर रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मुंबई इंडियंस सिर्फ आप जो 11 प्लेयर कर रहे हैं उसके ऊपर नहीं है। एक बहुत बड़ी फौज है इनकी थिंक टैंक की, वो क्या कर रहे हैं, उनके क्वेश्चन मार्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और अमित जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अगर हम मुंबई इंडियंस की बात करें, आपने बहुत अच्छा कहा कि उनकी थिंक टैंक बहुत ही मजबूत है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर, लसित मलिंगा उनकी थिंक टैंक में है। कल उन्होंने 2 चेंज किए थे, एक पीयूष चावला और एक नेहल वाडेरा। चले नेहल वाडेरा आए, अपने 49 रन भी उन्होंने बनाए अच्छी तरीके से, कहीं पे टीम को अच्छा टारगेट भी दिया। मगर हम ये कह सकते हैं कि नहीं, जो टॉप ऑर्डर के ऊपर सबको ऐसे एक विश्वास होता है कि नहीं, कुछ भी करके ये टॉप ऑर्डर अच्छे खेलेंगे और हमें एक अच्छा टोटल देंगे। और कल राजस्थान रॉयल्स के सामने इतना कम टोटल, वो भी कहीं पे अच्छा नहीं है। क्या कहोगे आप राजस्थान रॉयल्स के बारे में? क्योंकि यशस्वी जायसवाल फॉर्म में आ गए हैं, जॉस बटलर आ गए, सिमरन हेटमैन, ये हम कह सकते हैं कि बैटिंग और बॉलिंग को लेके एक परफेक्ट टीम आईपीएल में इस बार पहली दिख रही है। देखिए, अगर आप परफेक्ट टीम की बात करेंगे तो मैं बोलूँगा बैलेंस टीम तो सबसे अच्छा, और मैं बोलूँगा कि पहला नंबर आता है राजस्थान रॉयल्स का, और दूसरा बैलेंस टीम बनती है केकेआर। ये 2 जो टीमें हैं, आप उसमें ज़्यादा चेंजेस भी नहीं देखेंगे आप प्लेइंग 11 में। और आप देखिए तो उनकी टीम बहुत जल्दी जेल वेल होकर बैलेंस्ड हो गई है कि उनको मालूम है कि भाई ये है, मैक्सिमम 1-2 चेंजेस बहुत है, अगर कोई इंजरी होता है तो आएगा। हालांकि अगर आप यही चीज़ मुंबई इंडियंस देख लीजिए, या आप आरसीबी देख लीजिए, या फिर और जो स्ट्रगल कर रही है टीम पंजाब किंग्स 11 देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, इसमें बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो जितनी जल्दी आईपीएल का तो मंत्र ही है कि आपकी टीम कितनी जल्दी बैलेंस हो जाए, आप स्टिक करें एक प्लेइंग 11 पे। आप देखिए चेन्नई की टीम, आप नहीं देखेंगे ज़्यादा चेंजेस आएंगे, चाहे वो टीम कैसे भी कर रही हो, बिल्कुल, क्योंकि वो ट्रस्ट करते हैं प्लेयर्स को। यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रस्ट फैक्टर्स के ऊपर देखा जा रहा है। आपके बैटिंग ऑर्डर अभी तक नहीं हो पा रहे हैं, बाकी टीम के कभी कोई 3 नंबर आ रहा है, कोई 5 नंबर आ रहा है,
ये आप लोगों को रोल डिफाइन करना जब तक नहीं होगा वो डिफिकल्ट होने वाला है। बिल्कुल। सो अगर नेहल वड़ेर और तिलक वर्मा ने अगर कल बैटिंग नहीं की होती, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बैटिंग की, उन दोनों जनों ने, यंग प्लेयर्स ने आके इतना अच्छा परफॉर्म किया है बिल्कुल। जिसकी वजह से ये 190 रन तक पहुंचे हैं। नहीं तो मैं देख रहा था कि 120 130 में बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। बिल्कुल। तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी बैटिंग की, लेकिन राजस्थान ने उसका जवाब बहुत ही करारे तरीके से दिया। अमित जी, हम ये एक बात तो हम कह ही सकते हैं कि जिस तरीके से अगर हम राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें, कोई एक प्लेयर ऐसा है कि जो पूरी की पूरी मैच जिता देता है और वहां पे एफर्ट्स दिखते हैं। टीम की अगर हम बात करें तो सब लोग इकट्ठे मिलके टीम को जिताने में आते हैं, मगर यहाँ पे हम देखने जाए तो कोई एक प्लेयर, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो वहां पे आंद्रे रसल है, वो आएंगे 20 बॉल खेलेंगे मगर 50 अपनी कंप्लीट करके चले जाएंगे। अगर बॉलिंग कर रहे हैं तो वो भी 3 विकेट ले लेंगे। और इसी तरीके से जो कंसिस्टेंसी है वो राजस्थान रॉयल्स में भी इस बार दिख रही है। जी बिल्कुल, बहुत इसमें मैं क्रेडिट देना चाहूँगा राजस्थान रॉयल्स के सपोर्ट टीम को और मैनेजमेंट को। जिस टीम ने रेहान पराग, अगर आप देखेंगे, जो एक गेम चेंजर की तरह आए हैं, एक मैच विनर की तरीके से इस सीज़न उभरे हैं, आप देखेंगे तो उनका बहुत ही क्वाइट सीज़न रहा है। वो पिछले 5 साल से राजस्थान रॉयल्स में है, लेकिन उनका कोई इम्पैक्ट इतना रहा नहीं रेहान का। लेकिन इस साल जो उन्होंने मेहनत की है, जिस तरीके से मेहनत की है और अब वो परफॉर्म कर रहे हैं, इसके कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि भाई आप, कोई बात नहीं, सीज़न खराब गया तो भी आप हमारे जो प्लानिंग के रडार में हैं, आप पूरे इन द मिक्स हैं, आप प्लेइंग 11 में हैं। तो उस तरीके से रेहान के ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाया गया, ट्रस्ट दिखाया गया और देखिए आज वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। मुंबई इंडियंस की अगर मैं बात करूं तो आपके पास जो बैट्समैन है, अगर आप कभी भी उनका डेटा या एनालिसिस करेंगे तो किसी की सीजन खराब नहीं जाएगी। आप देखेंगे सबने 200 रन बनाए हैं, लेकिन क्या वो टीम मिल के बना रही है? तो कभी कोई रोहित रन बना दे रहे हैं तो बाकी सारे कोई रन नहीं बना रहे हैं, या बहुत से बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्मेंस हो रहा है मुंबई इंडियंस का। तो कहीं कंबाइन एफर्ट नहीं आ रहा है। मे बी वो 20-20 रन ही बनाएंगे, लेकिन टीम मैच जीतनी चाहिए। बिल्कुल, तो यही चीज़ एक आरसीबी में भी आप देखेंगे तो मिस आउट है कि आपको लगेंगे रन गटर्स बहुत हाई हैं, कोहली सुपर बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर टीम का सपोर्ट कहीं और से, किसी और बल्लेबाज से नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमित जी, कल की मैच के तो लेकर हमने बात की, मगर हम आज की बात करते हैं। चेन्नई सुपर किंग वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। आपको भी पता है, अगर हम आईपीएल की बात करें तो आईपीएल में सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा फैन बेस है तो वो येलो आर्मी, मतलब चेन्नई सुपर किंग का। और चेन्नई सुपर किंग इक्वल टू माही, महेंद्र सिंह धोनी। सब लोग एक ही प्लेयर को देखने आते हैं स्टेडियम में, हम ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब तक की जो भी मैच रही है वहाँ पे सब लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं कि अगर लास्ट के 10 बॉल है तो हम महेंद्र सिंह धोनी को देखना चाहते हैं। आज की अगर हम मैच की बात करें तो सबसे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स की बात हम बाद में करेंगे, मगर चेन्नई सुपर किंग इक्वल टू माही, ये जो फैन बेस है उसके बारे में आप क्या कहोगे? नहीं, वो फैन बेस है। मैं अपनी बात ही करूँ तो मैं भी एक बहुत बड़ा फैन हूँ कि अगर चेन्नई सुपर किंग का मैच चल रहा है और गलती से अगर MS धोनी स्क्रीन पे भी आ गए तो हम लोग रुक जाते हैं कि भाई देखते हैं, चाहे वो चाहे डगआउट में हो, चाहे वो ड्रेसिंग रूम में हो, चाहे वो ऑन फील्ड हो। तो ये एक प्यार है सबका माही की तरफ, और वो रहना भी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने इंडिया को जिस लेवल पे लेके आए हैं अपनी कप्तानी के अंदर में, जिस तरीके से एक सक्सेशन प्लानिंग के तरीके से उन्होंने प्लेयर्स को तैयार करके दिया है इंडिया को, जो आज आप देख रहे हैं वो सब उनके अंडर में कहीं ना कहीं ग्रूम हुए हैं। तो वो एक चीज़ आता है, वो कनेक्ट आता है, सब लोगों को मालूम है कि किस प्लेयर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसीलिए इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट माही के लिए है। और रही बात येलो टीम और वो भी चेन्नई, तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है लखनऊ के लिए, क्योंकि आप देखेंगे तो लास्ट मैच में उनकी जो विकेट्स थी वो धीरे धीरे टर्नर की तरफ जा रही है। उनको अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रही है। चेन्नई अब अपने स्ट्रेंथ पे खेलेगी, वो रिस्क नहीं लेगी, स्लो विकेट्स आएंगे और उसमें सामने वाली टीम किस तरीके से प्रिपेयर हो रही है वो देखना है। क्योंकि आप पूरे थ्रू आउट इस आईपीएल में अगर हम देखें तो पूरी बैटिंग विकेट्स ही है। जिस तरीके से मेहम क्रिएट करके रखा है बैट्समैनों ने, 200 रन 250 रन आप देखिए, आप बन ही रहे हैं। आपका अगर बैटिंग फेलियर भी हो रहा है किसी टीम का तो भी वो 200 के पास पहुंच ही रही है। शायद ऐसा भी लग रहा है कि 300 भी बन जाएंगे अब नहीं, जरूर होगा। जिस तरीके से SRH बैटिंग कर रही है, मेरे को नहीं लगता है कि कोई एक मैच में हम 300 रन भी देखेंगे, और इस सीजन में ही देखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं माही का जो अभी भी मैं बोलूँगा कप्तान नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उनके इनपुट्स हैं थिंक टैंक में, और जिस तरीके से वो ग्रूम कर रहे हैं ऋतुराज को, एक विकेट वो अपनी टीम के कॉम्बिनेशन के हिसाब से बनना स्टार्ट हो जाएंगी।
और उस तरीके से फिर वो एक थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा होम में किसी को हराना, चेन्नई को। बिल्कुल बिल्कुल। और सामने की अगर हम बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स, अमित जी, हमने अभी लास्ट मैच की हम बात करें तो लास्ट मैच जो लखनऊ में थी, हम ये भी कह सकते हैं लखनऊ का होम ग्राउंड था, मगर वहाँ पे भी येलो आर्मी थी, वहाँ पे जो सपोर्ट उनको मिलना चाहिए था मगर वो नहीं मिला, मगर फिर भी वो अच्छी तरीके से वो जीत भी गए। केएल राहुल भी फॉर्म में आए, क्विंटन डिकॉक भी आए, मगर वहाँ पे भी कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है। वहाँ पे भी हम अगर बात करें तो निकोलस पुरन है या फिर जो स्टॉइनिस है वही अच्छी तरीके से खेलते हैं। सब लोग यही सोचते हैं कि नहीं, अगर हम टॉप ऑर्डर फेल है तो निकोलस पुरन है वो हमें बचा लेगा। मतलब अगर हम लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो अभी कोई भी इतना फॉर्म में नहीं है। क्या कहोगे लखनऊ सुपर जायंट्स की बॉलिंग और बैटिंग के बारे में? देखिए, लखनऊ अभी भी ना अपने कॉम्बिनेशन, राइट कॉम्बिनेशन ढूंढे जा रही है। अभी भी उनको मैं ये बोलूँगा कि पूरे 100% नहीं श्योर हो गए हैं कि ये प्लेइंग 11 है जो उनको क्वालिफायर्स के रोड तक लेके जाएगा या क्वालिफाई कराएगा। आज आप बैटिंग की बात करेंगे तो केएल राहुल बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन क्विंटन डिकॉक का भी ऑन एंड ऑफ रह रहा है। उनके क्विक 30s 20s आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ा स्कोर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से आपके बाकी ओपनर्स जो बड़े बड़े रन बना रहे हैं वैसा वो नहीं आ रहा है, पहला चीज़। उसके अलावा जो बीच में जो मिडिल ऑर्डर है, बिफोर पुरन के आने से पहले जो बैट्समैन है उनको नहीं आप देख रहे हैं कि वो कोई ज़्यादा सेटल होकर रन बना रहे हैं। आपके पास फिर पूरा का पूरा लोड आ जाता है पुरन और स्टॉइनिस के ऊपर, क्योंकि आप देखते हैं कि आयुष बदौनी है, उनके भी कुछ लिमिटेशन है। वो हार्ड हिटर नहीं है, वो बहुत स्वीट टाइमर है बॉल के। वो जिस तरीके से बैटिंग करेंगे वो सिंगल डबल कर सकते हैं, अच्छे बॉलों पे चौका लगाने की कोई, लेकिन अगर आप पावर हिटिंग की बात करेंगे तो वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आयुष बदौनी से जी। तो कहीं ना कहीं मेरे को अभी भी ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे जो हमारे इंडियन अनकैप प्लेयर्स हैं या इंडियन कैप प्लेयर्स हैं उनको स्टेप अप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बॉलिंग में भी उतना ही इम्पोर्टेंट चाहिए कि भाई आप कैसे कौन कौन से बॉलर हैं जो आ रहे हैं और वो आगे टीम को जिताना चाहेंगे। ओवरऑल मुझे कहीं ना बहुत ही गैप्स अभी भी लग रहे हैं कि लखनऊ वो एक कंप्लीट टीम पैकेज नहीं बन पाया है। और ये आपको इसी वजह से आप देखेंगे तो ऑन एंड ऑफ दिख रहा है। किसी दिन आपको लगेगा कि टीम बहुत अच्छी खेल रही है, किसी दिन आपको लगेगा कि नहीं ये टीम शायद ही अच्छा नहीं कर पाएगी और मैच भी इस वजह से हारते हैं। जी बिल्कुल। अमित जी, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कहीं मैनेजमेंट की थोड़ी गलती और या फिर कैप्टन की भी है, क्योंकि अगर हम टीम की बात करें तो टीम लीडर ऐसा होना चाहिए कि इन सब लोगों को साथ में लेके चले, और कहीं पे टीम के जो भी प्लेयर्स है वो भी अपना अपना कुछ एफर्ट्स डालें। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं फ्रेंचाइजी और साथ में कैप्टन की भी थोड़ी कोई गलती है, ऐसा कुछ? देखिए, डेफिनेटली मैं ये कैप्टन के ऊपर तो नहीं बोलूँगा कि उनकी गलती है, क्योंकि आप सब जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि एक कैप्टन कितना इन्वॉल्व रहता है। पूरे बाकी 10 महीने बाकी 10 महीने फ्रेंचाइजी के साथ नहीं रहता। वो या तो अपने कंट्री के लिए खेल रहे होते हैं या फिर डोमेस्टिक सीजन में ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे जो थिंक टैंक है वो तो पूरा का पूरा इन्वॉल्व है टीम का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। 10 महीने उनके स्काउट्स होते हैं, स्काउट लीडर्स होते हैं जो अच्छे यंग टैलेंट्स को ढूंढते हैं, जो उनके करंट प्लेयर्स हैं उनका फॉर्म कैसा है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। इसमें बहुत सारा काम बैकएंड से उतरता है। बोला ना कि टीम एफर्ट्स भी अभी तो चाहिए। सो एक तो ये चीज़ है कि किस तरीके से बना रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके 7-8 प्लेयर कैसे हैं जो खेलने हैं, बहुत ही इन द मिक्स हमेशा रहने चाहिए, और वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं। आज की तारीख में लखनऊ में मुझे नहीं लग रहा है कि सारे प्लेयर क्लियर हैं कि उनका रोल क्या है। हाँ, केएल राहुल की बात करें तो उनको मालूम है कि उनको 20 ओवर खड़े रहना है, उनको रन बनाना है। ये उनका एक अप्रोच रहता है और वो रन करते हैं। और वो अगर पहले स्लो स्टार्टर भी है तो भी वो अपना रन रेट का जो है एवरेज उन लोगों का वो कवर अप कर लेते हैं। हाउएवर जो स्ट्राइक रेट्स बाकी प्लेयर्स की आती है, या तो वो बहुत तेज होते हैं या फिर वो आउट हो जाते हैं। दीपक हुड्डा एक ऐसा मैं प्लेयर देख रहा हूँ जो नहीं ज़्यादा अच्छे से कर पा रहे हैं। आयुष बदौनी है, वो आप 120-130 का ही स्ट्राइक रेट हो सकता है। सही है। और स्टॉइनिस को कभी टाइम मिल रहा है तो कई बैड लक हो जा रहा है, वो या तो रन आउट हो जा रहे हैं या बहुत अच्छा बॉल हो जा रहा है, या तो फिर उनकी बैटिंग तब आ रही है जब मतलब हिट आउट और गेट आउट वाला सिचुएशन आ जाता है। तो सबका रोल क्या है, क्योंकि आप देखेंगे तो नंबर सबके चेंज हो रहे हैं। आप स्टिक नहीं है कि ये 3 नंबर यही बैटिंग करने वाला है, 4 यही करने वाला है। बिल्कुल। तो जब ऐसा कंफ्यूजन रहेगा तो प्लेयर भी कंफ्यूज रहता है कि उसे क्या करना है, और जो उसे लगता है कि यही इसका लास्ट चांस है, चलो परफॉर्म करने की कोशिश करें। अमित जी, एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, अगर हम चेन्नई सुपर किंग की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग के बारे में आप क्या कहोगे, बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप के भी बारे में?
थोड़ा नहीं, शॉर्ट में बताइएगा प्लीज। मैं मेरे हिसाब से चेन्नई सुपर किंग की बैटिंग से ज़्यादा मैं बोलूँगा कि बॉलिंग है, और जब वो अपने गढ़ में खेलती है तो डेफिनेटली बॉलिंग है। फती राना उनके हैं, मुस्तफिर रहमान हैं, ये दो बहुत ही ओवरसीज फास्ट बॉलर्स हैं और अच्छे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ ये ऐसे हैं जो ये स्किल सेट जल्दी नहीं है, इनके स्लोअर्स बहुत अच्छे हैं, इनके स्लोअर बाउंसर अच्छे हैं, इनके यॉर्कर्स बहुत अच्छे हैं, तो डिफिकल्ट है किसी भी टीम के। और अगर ट्रैक हल्का सा भी स्लो हुआ तो इनको मारना बहुत ही मुश्किल होगा। इस बार क्या लग रहा है, मगर दोनों बैलेंस टीम है, कौन जीतेगा? देखिए जिस तरीके से मैं एडवांटेज तो मैं डेफिनेटली चेन्नई को दूंगा, और ये 65-35 का मुकाबला होगा। मैं ये नहीं बोलता कि पास भी जाने वाला है। जिस तरीके से चेन्नई रीग्रुप होगा, और डेफिनेटली वो अपने जो लास्ट हार जो लखनऊ से ही हुई है, उसको भी वो लोग एसेस करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा कीन कॉन्टेस्ट नहीं होने वाला है, आराम से जीतेंगे। अच्छी बॉलिंग और अच्छी बैटिंग का मुजाहरा रहेगा। બિલકુલ, તો હવે આજે જોવાનું એ રહ્યું કે ચેન્નઈ સુપર કિંગ વર્સસ લખનઉ સુપર જાયન્ટ્સ વચ્ચે જે હવે મેચ થવા જઈ રહી છે, કોણ કેવું પરફોર્મન્સ આવશે તે તો આવનારો સમય જ બતાવશે। અમિતજી, ધન્યવાદ हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो दर्शक मित्रों, આજના વિશેષ કાર્યક્રમમાં બસ વિદાય આપશો। નમસ્કાર।